students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is AI for SDGs. So SD stand for Sustainable Development. तो Sustainable Development में AI कितना कारगर साबित हुआ है ये हम जान लेते हैं. Things to learn: evolution of a concept, sustainable development, 3 pillars of sustainable development, 17 SDGs and role of AI in achieving these goals. Robo, dear students, in your daily life you must have seen poor people struggling to find the daily necessities like food, safe water, healthcare and shelter for their survival. Adi and Adia, yes Robo, we have seen many poor people. Robo, do you know artificial intelligence can help these people? Adi and Adia, Robo, please tell us how. This is possible. Robo, let's study AI for sustainable development. तो हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को देखते हैं जो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो इनके लिए AI जो है काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है. ठीक है, कैसे ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Evolution of the concept of sustainable development receives its first major international recognition in 1972 at the UN Conference on the Human Environment, UNCHE, held in Stockholm, Sweden. The term was not used explicitly by the international community, agreed that both development and environmental could be managed in a mutually beneficial manner. In 1983, the United Nations created the World Commission on Environment and Development, which was later known as the Brundtland Commission. The Prime Minister of Norway at the time, Gro Harlem Brundtland, was appointed the chairman of the commission. The organization aimed at identifying the sustainability problems worldwide, raising awareness about them and suggesting the implementation of solutions at a global level. तो जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1972 में एट UN कॉन्फ्रेंस. मतलब एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे की गई थी जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर थी. मतलब पूरी तरीके से इसका जो बेस था या इसका जो एम था ये ह्यूमन डेवलपमेंट ही था. ये जो टर्म है ये पहले यूज़ नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में ने एग्री किया था बोथ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के तौर पर कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर में हम इसे ले सकते हैं. फिर 1983 में यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड कमीशन जो है वो क्रिएट की थी. ठीक है, इसके जो पहले हेड थे ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे नॉर्वे के एट दैट टाइम. तो ये इस कमीशन के चेयरपर्सन बने थे. ऑर्गेनाइजेशन थी जो एम करती थी एट आइडेंटिफाई द सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स. मतलब ये प्रॉब्लम्स को ढूंढती थी जो उस टाइम पे उस समाज में फैली हुई थी. तो उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करना, फिर उनका सलूशन ढूंढना, तो ये इस कमीशन का मेन एम था ग्लोबल लेवल पे. सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन हाउ ह्यूमन बींग्स कैन लिव इन पीस एंड हार्मनी with nature without creating ecological disturbance. Its aim is to visualize the long-term impact of our actions on environment and take corrosive measures to maintain balance between our demands and the supply of natural resources. तो इसका बेसिकली एम ये भी था कि नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्ब किए बिना हम ह्यूमन डेवलपमेंट करें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्राइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को तो हम सेटिस्फाई करें हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन की कैपेसिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दें और गारंटी करें कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक बैलेंस जो है बनाकर चलें. Sustainable development can be achieved if we follow the following points. The rate of consumption should not surpass the rate of salvation. For renewable resources, the rate of consumption should not surpass the rate of production of renewable substitutes. Technological development should be input effective and not input utilizing. It can be achieved by restricting human activities. It can be achieved by sensible use of natural resources. All types of pollution should be minimized.
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। जैसे आपका जो रेट ऑफ कंजप्शन है ये सरपास नहीं करना चाहिए रेट ऑफ सेलिब्रेशन को। रिन्यूएबल सोर्सेज जो है ये आपके रेट ऑफ कंजप्शन ये भी रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स के प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन को सरपास नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ये भी इनपुट होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ये यूटिलाइजिंग इनपुट नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी रिस्ट्रिक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनको आप कंट्रोल में रखें, ठीक है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके और एक सेंसिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बने। 3 pillars of sustainable development on the basis of different criteria such as context and level of decision making. The 3 elements of sustainable developments are as below. Social, economical, environmental. तो ये हमारे बेसिक क्राइटेरिया है जिनके आसपास हमारा जो डेवलपमेंट है वो घूमता है। These 3 elements are interconnected and also known as the pillars of sustainability. These pillars are informally referred to as people, profit and planet. Various topics come under the category of these 3 elements. तो आपके जो 3 एलिमेंट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये मेन पिलर्स माने जाते हैं सस्टेनेबिलिटी के। यहाँ पे आपके जो पिलर है ये रेफर करते हैं पीपल को, प्रॉफिट को एंड प्लैनेट को। Now 17 SDGs and role of AI in achieving these goals. The Sustainable Development Goals SDGs are also known as global goals. They were adopted by all United Members States in 2015 to set a goal to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy prosperity and peace by 2030. आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें हम SDGs भी कहते हैं इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। ये अडॉप्ट किए गए थे सारे यूनाइटेड मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, कब 2015 में, ताकि ये एक गोल सेट कर सके और पॉवर्टी को एंड कर सके। प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय प्रॉस्पेरिटी एंड पीस बाय 2030। तो जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें हम SDGs भी कहते हैं ये आपके ग्लोबल गोल्स भी माने जाते हैं क्योंकि ये अडॉप्ट किए गए थे सारे यूनाइटेड मेंबर्स स्टेट्स के द्वारा 2015 में, ताकि प्रॉपर जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको एंड किया जा सके, प्लैनेट को बचाया जा सके और सारे पीपल को इंश्योर किया जाए कि वो प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के साथ रहेंगे। The Sustainable Development Goals SDGs are a collection of 17 interlinked global goals to transform our world. तो इनके 17 गोल हैं, ठीक है। जैसे हम घर से निकलते हैं या हम बचपन में अपना एक एम निर्धारित करते हैं कि हम बड़े होकर ये काम करेंगे या ये बनेंगे, तो इन्होंने भी 17 अपने गोल जो हैं वो निर्धारित किए हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है ताकि वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जा सकते। They were designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all and part of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. They were agreed by 93 countries in September 2015. The 17 Sustainable Development Goals SDGs are given on next page. ठीक है, तो इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था ताकि अपने जो इनका एम है उसको ये अचीव कर सके। तो इनका गोल क्या है कि मतलब 2030 तक हम ये गोल जो है अचीव कर लेंगे और उनको अग्री किया गया था 193 कंट्रीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे आपको सस्टेनेबल गोल्स जो 17 गोल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, इनको हम डिटेल में जान लेते हैं। Let's now understand them individually and how AI can help to bring the change and achieve these goals by 2030. पहले तो हम इन गोल्स के बारे में एक एक करके जानेंगे और फिर AI कैसे हेल्प कर सकता है इसमें ये भी हम समझेंगे। First one is no poverty. Goal 1 SDG's first target is to end extreme poverty globally by 2030. AI technology is helping a lot in achieving the first goal of sustainable development because poverty stricken areas can be easily captured or identified through satellite images. Using these images, the government can easily identify the location of poor people and help them through various schemes in lifting out of poverty. अब जो लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है। उनकी जो पिक्चर्स वगैरह होती है वो कैप्चर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इन इमेजेस को यूज़ करके गवर्नमेंट जो है ईजिली इन प्योर पीपल की जो लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई कर सकती है और इन तक वेरियस स्कीम जो है पहुँचा सकती है, इनकी हेल्प कर सकती है, कैसे ना कैसे। सेकेंड इज़ ज़ीरो हंगर।
Goal 2, SDG 2 states that by 2030 we should end hunger and all forms of malnutrition, achieve food security and promote sustainable agriculture. AI can help in reaching out the goal by tracking food wastage, finding ways to grow yields, identifying diseases and pest outbreaks, analyzing means to reduce population, etc. अब इससे आपका ज़ीरो हंगर जो है वो भी ख़त्म होगा। कई लोग जो है वो भूखे सो जाते हैं, ठीक है, या उनके पास खाने को नहीं होता तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो एआई जो है इन लोगों तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। कैसे? ये फूड वेस्टेज को ट्रैक करेगा और ईल्ड्स को, मतलब जो आपकी खेती वगैरह है उनको आइडेंटिफाई करने में, डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने में, पेस्ट आउटब्रेक को आइडेंटिफाई करने में, फाइंड करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, ताकि जो पॉपुलेशन है जो गरीब है या जो भूखी है वो भूखी ना रहे। Third, good health and well-being. Goal 3. The goal focuses on the well-being and good health for all. It aims to end epidemic like cholera, tuberculosis, malaria and other communicable diseases. AI can help in achieving this goal by increasing the ability of healthcare professionals to analyze huge data sets, providing better feedback and finding accurately the cause of diseases to discover the cure. हेल्दी होना हर इंसान की ज़रूरत है, ठीक है, और उसका हक भी है। तो यहाँ पे ये जो गोल है ये फोकस करता है वेलबींग पे और गुड हेल्थ पे। आजकल लोग जो हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो ना मिलने की वजह से कभी कभी क्या हो जाते हैं, वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं और वो उनकी जान भी चली जाती हैं। तो एआई जो है हेल्प करेगा ये हेल्थ केयर एबिलिटी को बढ़ाने में, ठीक है, प्रोफेशनल्स को हेल्प करेगा ताकि वो ह्यूज डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकें और एक बेटर फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर सकें और लोगों के डिसीज़ को अच्छे से अच्छे क्योर कर सकें। फोर्थ इज़ क्वालिटी एजुकेशन। गोल 4, SDG 4 एम to ensure inclusive and equitable quality education at the primary level for both girls and boys and promote lifelong learning opportunities for all. अब देखो बच्चे जो होते हैं उनके लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उनको अपने जो वेल बीइंग है उनके बारे में पता चलता है, ठीक है, उनको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता चलता है और वो अपना छोटा मोटा कुछ भी काम धंधा सीख लेते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि बच्चों को ये एजुकेशन वगैरह देना ज़रूरी है। कई जगहों पर बड़े लोगों के लिए भी क्लासेस वगैरह खोली जाती हैं जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, जो बचपन में किसी कारण से पढ़ नहीं सके वो बड़े होकर पढ़ सकते हैं और आसपास की नॉलेज उन्हें मिल सकती है। तो लर्निंग जो है अपॉर्चुनिटी है ये सबके लिए है, सब मतलब बड़े भी बूढ़े भी पढ़ लिख सकते हैं। You should know AI powered face recognition solution which uses computer vision and machine learning algorithms to mark the attendance of the employees or students of the organization. The system will recognize the faces and verify the presence or absence of each student. तो AI पावर्ड फेस रिकग्निशन जो है वो आपका सोल्यूशन माना जाता है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कूल छुट्टी कर जाते हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेट आते हैं, तो ये जो आपका फेस रिकग्निशन जो सिस्टम है ये आपके फेसेस को रिकग्नाइज करेगा और आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में भी बताएगा। Now, fifth, gender equality. Goal 5 for sustainable development. It's necessary that we end all forms of discrimination against women. This is a basic human right. We need to provide equal access to resources, opportunities, power and prosperity to women in the world. AI-powered apps can be used by employers to use gender-sensitive language for their recruitment drive. AI can analyze a huge amount of data to find the area where more gender specific issue exist. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमेन वो ख़त्म करें। लोग अभी भी जो बच्चियां होती हैं उनके खिलाफ भेदभाव करते हैं, ठीक है, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, उनसे घर के काम कराए जाते हैं। तो ये जो बेसिक ह्यूमन राइट है इसको ये सबको मिलना चाहिए, मतलब लड़कों को भी लड़कियों को भी, मैन फीमेल चाहे जो भी हैं सबको मिलना चाहिए। तो AI पावर्ड ऐप जो है ये क्रिएट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिल जाएगी जेंडर सेंसिटिविटी को, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं उसको डिटेक्ट करने में। साथ ही साथ AI जो है वो एनालाइज कर पाएगा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब वो पता कर पाएगा कि कहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। You should know gender equality is not only a fundamental human right but a necessary foundation for a peaceful and sustainable world.
equal access to education, decent work and representation in political and economic decision making processes will introduce gender equality and more jobs for women. तो ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये सिर्फ फंडामेंटल ह्यूमन राइट ही नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन है पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए। हमें बच्चियों को भी इक्वल एक्सेस देना चाहिए पढ़ने का, लिखने का, काम करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। Now 6, clean water and sanitation. 6, goal 6, the aim of this goal is to provide clean water by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of harmful chemicals by 2030. It also aims to educate people for good hygiene habits and improve sanitation facilities. AI can influence machine learning to analyze wastewater treatment plans data and provide predictive recommendations so that plants can meet clean water and sanitation objectives at the best operating cost. तो हर किसी को क्लीन वाटर मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो सैनिटेट, अपने आप को जैसे सैनिटाइज करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अपनी मतलब देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डर्टी रहेंगे तो आप पे बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो इस गोल का एम है कि आपको पोल्यूशन रिड्यूस करके एक हेल्दी, एक फ्रेश वाटर जो है पीने को मिले। तो ये कोशिश करते हैं कि जो लोग अपना जो कूड़ा नदियों में डंप कर देते हैं वो चीज़ को रोका जा सके। 7th is affordable and clean energy. Goal 7 SDG 7 aims to provide clean energy by 2030 by the means of effectively implementing renewable energy solutions that are cheaper, more reliable and efficient. The AI-powered system will be able to analyze the huge data related to energy collections and provide a vision on energy consumption. This will result in expanding the market and reducing the energy management cost. तो 7th जो है ये आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे बेस्ड है। SDG 7 जो है ये एम करता है कि आपको क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सके बाय 2030, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और एक एफिशिएंट एंड रिलायबल, एक चीपर सोल्यूशन उसका निकाला जा सके। AI पावर्ड सिस्टम जो है ये एनालाइज करेगा ह्यूज डेटा को रिलेटेड टू एनर्जी कलेक्शन और कंजप्शन पे भी ये रोक लगाएगा, ठीक है। 8th है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल 8 SDG 8 एम्स टू लेसन द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इट टारगेट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर all to get a work with fair income, security in the workplace and social protection for families. अब कई जो बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है, कोर्स कर लेते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं होती। तो इस गोल का ये एम है कि जो जितने भी आपके अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एक जॉब मिल सके और उनको उनके वर्क प्लेस में एक फेयर एनवायरनमेंट मिल सके, ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर सके। AI technology is used for promoting renewable energy uses because it has enough potential to optimize energy production and make adjustments according to circumstances and demand. So renewable energy production can be better than ever and the non-renewable sources will eventually be replaced. तो AI टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। यूज़ बिकॉज आपका जो पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने का, एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करने का, उसको प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने का, ये AI के थ्रू बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। 9th is industry, innovation and infrastructure. Goal 9 SDG 9 aims to provide employment to people in the manufacturing industry along with creating resilient infrastructure, promoting sustainable industrialization and fostering innovation. तो 9th है आपका, 9th जो आपका एम है SDG ये एम करता है ताकि पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अलॉन्ग विद इसमें आपका क्रिएट होगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा और एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाया जाएगा। You should know according to a study AI will double economic growth by 2035. Now 10th is reduce inequality. Goal 10, it aims to ensure equal opportunities and discrimination by eliminating discriminatory laws, policies and practices. AI may help in improving industrial growth, thereby improving the global financial market and institution. तो ये inequalities को reduce करेगा, क्योंकि आजकल कई जगह पे आपने देखा होगा लॉज ऐसे बने हैं, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, पॉलिसीज़ बनी हुई है, प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं जो रिच लोगों को काफ़ी बेनिफिट देती हैं, गरीब लोगों को नहीं देती। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म किया जाएगा।
11th is Sustainable Cities and Communities. Goal 11, SDG 11 aims to provide safe and affordable housing facilities to all. It also advocates a green and culturally inspiring condition for all. Technologies like AI in smart cities help the cities to utilize current assets more effectively, allot resources more efficiently, and understand how data can be shared and managed across the whole system. 11 जो आपका गोल है ये सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है, ताकि उनको सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये एडवोकेट करेगा ग्रीन एंड कल्चरली इंस्पायरिंग कंडीशंस को हर किसी के लिए। 12th इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। Goal 12, the aim of SDG 12 is to use eco-friendly productions methods and promote sustainable consumption, thus reducing the amount of waste. तो जो वेस्ट है उसके अमाउंट को रोकने के लिए यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स को यूज़ किया जाएगा, वो बनाए जाएंगे ताकि प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल कंजप्शन को, तो जिससे जो वेस्टेज होगी वो कम होगी। 13 क्लाइमेट एक्शन। Goal 13, the goal is to reduce global warming, address the climate-related hazards in all countries, takes up policies nationally and build knowledge and capacities to meet climate change. AI for climate actions has the potential to reduce global greenhouse gas emission by up to 4%. अब हमें अपने साथ साथ क्लाइमेट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13th गोल है ये इसलिए बनाया है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और क्लाइमेट रिलेटेड हैज़ार्ड्स को जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें ये पॉलिसीज़ लागू की जाए कि वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन को अच्छे से हैंडल करें। 14th लाइफ बिलो वाटर। Goal 14, SDG 14 aims to create effective strategies to reduce the adverse effect in increase ocean acidification and protect marine biodiversity. अब लोग क्या करते हैं, पानी में सीज़ में कूड़ा फेंक देते हैं, केमिकल्स वगैरह फेंक देते हैं, जिससे वहाँ की जो ओशन लाइफ है, जो एनिमल वहाँ पे जो रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो रहते हैं, उनकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है। AI टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन predicting the spread of invasive species, locating marine litter, monitoring ocean currents, keeping track of dead zones, measuring pollution levels and do much to conserve marine life. तो AI टेक्नोलॉजी है जो है वो इस क्षेत्र में काम करेगी कि वो जो इन्वेसिव स्पीसीज़ है उनके स्प्रेड को रोकेगी या उसको डिटेक्ट करेगी, ठीक है, डेड जोन्स के ऊपर एक ट्रैक रखेगी और साथ ही साथ मरीन लाइफ को भी कंजर्व करने में हेल्प करेगी। 15 life on land. Goal 15, this SDG aims to protecting, restoring and promoting the sustainable use of terrestrial ecosystem, managing forest, fighting deforestation, reversing land degradation and stopping biodiversity loss. In future, AI methods may be used to create a digital dashboard for the planet to help us monitor, model, foresee and manage environmental systems at a global stage. तो SDG जो है ये इसका एम है कि वो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी क्या करे, प्रमोट करे, उसे रिस्टोर करे, ठीक है, लैंड के डिग्रेडेशन को रोके, उसके जो इरोजन है उसको रोका जाए और उसको कंजर्व किया जाए। 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। गोल 16, दिस SDG aims to guarantee justice and freedom for all people by 2030. The target is to significantly reduce all forms of violence with communities and governments to end conflict and insecurity. तो ये जो SDG है इसका एम है ताकि जस्टिस एंड फ्रीडम को गारंटी किया जाए हर किसी के लिए, ठीक है, मतलब लोग जो है फ्रीली घूम सकें, अपने जस्टिस के लिए वो लड़ सकें। 17th है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। Goal 17, SDG 17 aims to ensure that countries and organizations cooperate and develop multi-stakeholder partnerships to share knowledge, technology and financial support in order to strengthen the implementation of the goals and revitalize the global partnership for sustainable development. तो ये जो आपका लास्ट गोल है इसका जो एम है वो यही है कि ताकि जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस गोल से जुड़ी हैं, वो सारी की सारी अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली एक दूसरे के बारे में नॉलेज रखें, ठीक है, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें और एक दूसरे के साथ अच्छे से भागीदारी निभाएं। AI टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी
revolutionized the way of living of the entire world and is being used to achieve the sustainable development goals. तो एआई टेक्नोलॉजी जो है ये ऑलरेडी रेवोल्यूशनलाइज्ड हो चुकी है, ठीक है, हमारे एंटायर वर्ल्ड को, हमारी लिविंग को ये कहीं ना कहीं चेंज कर चुकी है, लेकिन ये और अच्छे से हमारी लाइफ को चेंज करे या अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाए, इसके लिए हमें भी कुछ कदम जो हैं वो उठाने पड़ेंगे. Conceptual learning surf the internet and gather more data on SDGs. Write a brief note on how our countries can achieve its goal faster. Write in 200 words and discuss with your teacher. तो आपको क्या करना है, इंटरनेट में आपको सर्व करना है और आपको SDGs के ऊपर और डेटा जो है गैदर करना है. इसके बाद आपको अपनी टीचर के साथ इसके बारे में डिस्कस करना है. नाउ ट्रिकी टर्म्स SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो इस चैप्टर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या थे ये 17 गोल्स थे, AI कैसे इनमें वर्क या हेल्प कर सकता है वो भी हमने जाना. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.